Good afternoon, students. Today our topic is vector product of vectors, or we can say the cross product of vectors. लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो क्या था? इफ एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन देयर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी किसके बराबर होता है? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, एंड इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस yields a scalar quantity. Now what is vector product? If A and B are any two non-zero vectors and theta is the angle between them, then their vector product is defined, which is denoted by A cross B, is defined as, किसके बराबर होता है A cross B? A क्रॉस बी किसके बराबर होता है? दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा into a unit vector n, where theta is the angle between A and B, and this theta lies 0 less than or equal to theta less than or equal to pi or 180. Theta lies between 0 and 180, that you know of the angle between the two vectors. And what is this n? This n is a unit vector. जो ये n है ये यूनिट वेक्टर है which is perpendicular to both A and B. If this is A, for example, this is OA, this represents A, and this is B, OB, OB represents vector B, and theta is the angle between them, this is theta. Then what is A cross B? Mod A mod B sin of theta into unit vector n. इसका ये यूनिट वेक्टर n क्या होता है? साइड दैट a b and n आर इन अ राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। राइट हैंडेड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे, देन वी रोटेट द a टुवर्ड्स b थ्रू द स्मॉलर एंगल। ऐसे ये रोटेट करेंगे, ऐसे जब रोटेट करेंगे a टुवर्ड्स b, तो जो ये स्क्रू है ये ऊपर आएगा, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर वाले की, जो मैं ऐसे यहाँ दिखाता हूँ। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ n. The unit vector which is perpendicular to A and B when the screw is rotated from A towards B. ऐसे हम रोटेट करेंगे, ऐसे जब रोटेट करेंगे तो स्क्रू ऊपर आएगा। लेकिन अगर B क्रॉस A करेंगे, वो आएगा B to A, वो फिर अंदर जाएगा, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। So A cross B is called mod A mod B sin theta into a unit vector n, which gives its direction. That is why it is called a vector product, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। किस डायरेक्शन में होता है A cross B? A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B, vector A and vector B, or which is perpendicular to the plane containing A and B, and its direction is towards n, where n is perpendicular to both A and B, and such that they are in right-handed orientation. Right-handed orientation का मतलब क्या? अगर हम right hand screw रखेंगे यहाँ पर, and we rotate it from A towards B, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो रोटेट ऊपर आएगा, तो ये देता है n की डायरेक्शन। जब B क्रॉस A होगा वो अंदर जाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी B क्रॉस A वो n के अपोजिट होगा, ऐसे। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये B क्रॉस A में आएगा, ठीक है। सो अगर हम लिखेंगे B क्रॉस A, B क्रॉस A क्या आएगा? अगर वो हम लिखेंगे, दैट इज मॉड A मॉड B साइन थीटा इनटू n, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो अपोजिट है वो आएगा B टुवर्ड्स A, B से A की ओर करेंगे, A टू B हो गया ऐसे, हम A टुवर्ड्स B स्क्रू को रोटेट करेंगे, B टुवर्ड्स A, तो ऐसे करेंगे ये अंदर जाएगा, तो दिस इज, एंड दिस एम्प्लॉइज जो B क्रॉस A है, B क्रॉस A किसके बराबर आएगा? वो आएगा माइनस मॉड A मॉड B sin theta into unit vector n, and here therefore you get B cross A जो है ये किसके बराबर है? माइनस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज A cross B. A B cross A is equal to minus times B cross A, because they have the same magnitude but they are in opposite direction, ठीक है। So this is vector product. Vector product इसको क्यों बोलते हैं? Because it gives a vector quantity. And what is A cross B? A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B, or we can say it is a vector which is perpendicular to the plane containing A and B.
और इसकी जो डायरेक्शन है दैट स्क्यूड बाय n साइड दैट a b and n are in right handed orientation. By right handed orientation we mean we जो राइट हैंडेड स्क्रू है we rotate it from a towards b. जिस डायरेक्शन में रोटेट एडवांस करेगा ये स्क्रू, जिस डायरेक्शन में जाएगा ये ऊपर आएगा, तो ये इसका होगा दिस गिव्स इट डायरेक्शन. लेकिन अगर बी क्रॉस ए करेंगे वो आएगा ऐसे, तो ये एडवांस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अंदर चला जाएगा. तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट. आप इसमें कुछ यहां पर आप देखोगे देयर आर सम ये कम्यूटेटिव नहीं है. इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी है, A cross B is not equal to B cross A. So cross product is not commutative. Number two अगर आप देखोगे अभी हमने किया A cross B इसके बराबर होता है that is mod A mod B sin theta into unit vector n. Name this as first. If I take mod on both sides, so mod of A cross B, if I take the magnitude on both sides, mod of A cross B क्या आएगा mod of mod A mod B sin theta into n इसका mod. अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो बनेगा mod of mod A, वो बनेगा सिंपली mod A. फिर आएगा mod B of mod B, वो आएगा सिंपली mod B. Then mod of sin theta n into magnitude of unit vector n. ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा mod of A क्रॉस B mod of A mod of B mod of sin theta ही होगा, वो मैं भी बताऊंगा क्यों. और यूनिट वेक्टर n का mod 1 होता है. ये sin थीटा क्यों आएगा? बिकॉज जो थीटा है, थीटा लाई करता है किसमें? 0 से 180 तक. यानी 0 से 180 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है. सो मॉड ऑफ साइन थीटा इज सिंपली साइन थीटा बिकॉज इट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये आएगा. ठीक है. सो व्हाट वी गेट? सो वी गेट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी जो है दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा सेकंड. और यहां से अगर आप देखोगे कभी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे अब आप निकाल सकते हो. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉड ए इनटू मॉड बी. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, आल्सो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एक होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए इनटू मॉड. दूसरा ऐसे भी है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड. अब और एक चीज देखो, अगर इस फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करूंगा, वी कैन, अगर वेक्टर बाय वेक्टर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये वेक्टर है, ये स्केलर है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. सो वी कैन डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड. डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड. जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा ए क्रॉस बी एम्प्लॉइज ए क्रॉस बी डिवाइड बाय क्या आएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा? दिस डिवाइड बाय दिस. मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, दैट इज सिर्फ n. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय A cross B by mod of A cross B. और जो ये वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ A cross B. अगर आपको क्वेश्चन होगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A and B, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A and B, तो जो ये A और B है इसको n भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर हम फिर प्लस माइनस भी ले सकते हैं. बट इफ यू हैव, इफ द क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन ऐसा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच इज सो दैट दे आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, फिर ये फॉर्मूला आएगा. अगर क्वेश्चन इतना ही है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, फिर प्लस माइनस बी आएगा, क्योंकि ये एन बी इसको परपेंडिकुलर है और ये माइनस एन बी इसको परपेंडिकुलर है. सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन
जिस परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब और एक चीज मैं बताऊंगा, अगर if A and B are collinear, next number third step, if A and B are collinear, A and B are collinear means A and B are parallel. Parallel vectors are collinear vectors. That's the same thing. Then उस वक्त थीटा क्या होगा, या तो थीटा 0 डिग्री होगा और या 180 डिग्री होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा साइन 0 या साइन ऑफ 180, दैट विल बी 0। देयरफॉर जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा इंटू 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो ये आएगा देयरफॉर एम्प्लॉइज A cross B is equal to a 0 vector. If two vectors are collinear, then A cross B is equal to 0. कभी हम ये भी यूज करते हैं, prove that the two vectors are collinear or they are parallel. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, then it means that the two vectors are collinear. इन्हें collinear प्रूव करने के लिए दूसरा तरीका है। If you have to prove any two vectors are collinear and their cross product, if the cross product is 0, then they are collinear. इसलिए यहां से ये भी आता है, if A क्रॉस B is equal to 0, what does it imply? अगर A क्रॉस B 0 होगा, then when it is possible A क्रॉस B will be 0, ये क्या आएगा, either A equal to 0, या तो A 0 होगा, और B is equal to 0, और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, A and B are collinear or A is parallel to B। अगर A क्रॉस B 0 होगा तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा या A और B collinear होंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कब 0 होता है, A डॉट B कब 0 होता है, either A is equal to 0 or B is equal to 0 or A is perpendicular to B। यहां पर वही है, यहां परपेंडिकुलर के बदले क्रॉस A में आता है पैरेलल। ठीक है, नाउ if I take the cross product in terms of the unit vectors I, J and K, cross product in terms of unit vectors I, J and K, cross product in terms of unit vectors I, J and K. What are I, J and K? I, J and K are mutually unit vectors. I is the unit vector along x-axis, J is a unit vector along y-axis, and K is a unit vector along z-axis. Then अगर मैं करूंगा I क्रॉस I क्या होगा, नंबर फर्स्ट I क्रॉस I का mod I into mod I, what is the angle between I and I, that is 0, sin 0 into a some unit vector n, sin 0 ये बनेगा mod I is 1 into 1, sin 0 is 0 into आएगा 0 into unit vector n, so this is equal to 0 vector। therefore जो है ये याद रखना है, I क्रॉस I is equal to 0। सिमिलरली अगर आप देखोगे J क्रॉस J भी 0 होगा और K क्रॉस K भी 0 होगा, लेकिन अगर एक क्रॉस है I क्रॉस I is equal to 0। हाँ, I डॉट I क्या होता है, व्हाट इज I डॉट I, दैट इज इक्वल टू 1। J डॉट J क्या होता है, वो भी 1 होता है। K डॉट K क्या होता है, वो भी 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। अब अगर हम I क्रॉस J लेंगे, I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या है, मॉड A मॉड I mod J into sin theta, what is the angle between I and J, that is 90 degrees, sin 90 degrees, and a unit vector which is perpendicular to I and J and R form the right handed orientation, that is unit vector K, because I, J and K form a right handed orientation। तो ये आएगा mod I mod J sin theta and a vector which is perpendicular to both I and J, that is K। and what is this, this is equal to 1, this is equal to 1 and sin 90 is 1 and आएगा unit vector K। therefore I क्रॉस J वो आएगा K के बराबर। इसी तरह अगर आप ऐसे करोगे J क्रॉस K आएगा I के बराबर, एंड K क्रॉस I आएगा किसके बराबर, J के बराबर। I J K I क्रॉस J is K, J क्रॉस K is I and K क्रॉस I is J। और यहां से अगर आप देखोगे J क्रॉस I
वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस सी, तो ये आएगा माइनस के। इसी तरह के क्रॉस जे, जैसे जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई। एंड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। ये याद रखने का बिल्कुल इजी तरीका है। ये मानो ये है आपका आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई जे के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जी। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जी, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। यानी अगर क्लॉकवाइज में प्लस आएगा, जे आई क्रॉस जे इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस के इक्वल टू प्लस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे। लेकिन उल्टा में आएगा तो ये माइनस आएगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, एंड के क्रॉस जे इक्वल टू, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई डॉट जे होता है जीरो, आई डॉट जे भी जीरो, जे डॉट के भी जीरो, के डॉट आई भी जीरो। सो दिस इज, तो ये आपको याद रखना है, आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो, के क्रॉस के इज जीरो। लेकिन आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, एंड के क्रॉस आई इज जे। और जब डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्रॉस product in terms of components. This is very simple cross product. So ठीक है, मुझे लग रहा है आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस वक्त आपको समझने में जल्दी से आपको समझ आएगा ये। सो ये हम कैसे करेंगे, लेट ए इक्वल टू a1i प्लस a2g प्लस a3k, b इक्वल टू b1i प्लस b2g प्लस b3k। देयरफॉर अगर हम a क्रॉस b निकालना होगा, a क्रॉस b किसके बराबर आएगा, a1i प्लस a2g प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2g प्लस b3k। नाउ लेट अस टेक द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म बाय टर्म, स्केलर को स्केलर के साथ और वेक्टर को वेक्टर के साथ। ये आएगा a1 b1 i क्रॉस i, a1 b1 i क्रॉस i, ओके, प्लस a1 b2 i क्रॉस j, i क्रॉस j, स्केलर को स्केलर के साथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ। फिर a1 b3 प्लस a1 b3 i क्रॉस k, i क्रॉस k, प्लस अब a2 j से a2 b1 j क्रॉस i, j क्रॉस i, प्लस a2 b2 j क्रॉस j, j क्रॉस j, a2 b3 j क्रॉस k, j क्रॉस k, ठीक है। अब a3k से प्लस a3b1 k क्रॉस i, k क्रॉस i। अब आएगा a3b2 प्लस a3b2 k क्रॉस j, k क्रॉस j, प्लस a3b3 k क्रॉस k, k क्रॉस k, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा a1 b1, i क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस i जीरो, तो ये आएगा नहीं। a1 b2 i क्रॉस j, i क्रॉस j किसके बराबर है,
के बराबर। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ऐसे करो, आई जे के, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। फिर आएगा प्लस A1B3 प्लस A1B3 आई क्रॉस के उल्टा आ गया तो माइनस जे प्लस A2B1 जे क्रॉस आई फिर उल्टा आ गया, जे क्रॉस आई इज माइनस के, इट इज माइनस आई प्लस A2B2 जे क्रॉस जे इज जीरो तो ये जीरो बनेगा, प्लस A2B3 जे क्रॉस के इज आई इंटू आई प्लस A3B1 के क्रॉस आई इज ऑल्सो J प्लस A3B2 के क्रॉस J उल्टा आ गया तो माइनस आई, ठीक है। फिर इसमें आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो, के क्रॉस के इज जीरो, तो ये तीनों जीरो बने तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा, दिस एम्प्लॉइज, ये आएगा आई कहां पर है, ये आई है और यहां पर आई है, इसमें आई निकालेंगे कॉमन, आएगा एम्प्लॉइज ए क्रॉस बी इक्वल टू आई इंटू A2B3 माइनस यहां आई है माइनस A3B2 फिर आएगा माइनस जे, ये है ना माइनस जे और जे यहां पर है, माइनस जे निकाला कॉमन, यहां क्या आएगा A1B3 माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा A3B1 प्लस के इंटू के इसमें है और इसमें है A1B2 माइनस A2B1 दिस इज द फॉर्मूला फॉर A क्रॉस B। लेकिन इसका सिंपल तरीका है याद रखने के लिए, वेरी सिंपल, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। A क्रॉस B के लिए जो सिंपल है वो ये डिटरमिनेंट है, आई जे के A1 A2 A3 आई जे और के कोफिशिएंट्स, फिर B1 B2 B3 बी के कोफिशिएंट्स B1 B2 B3, ये आपको याद रखना है। इस डिटरमिनेंट को खोलो, आप देखोगे, आप कहोगे कैसे, जैसे आई इंटू क्या है, ये कैंसिल A2B3 माइनस B2 B3 है, आई इंटू A2B3 माइनस A3 B2, ठीक है। फिर क्या आता है माइनस जे इंटू ये कैंसिल A1B3 माइनस B1 A3 A1B3 माइनस A3 B1 प्लस के इंटू ये कैंसिल A1B2 माइनस A2 B1। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये इसका याद रखने का तरीका है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये होता है A क्रॉस B किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट आई जे के, फिर A के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3 और सेकंड रो B के कोफिशिएंट्स B1 B2 B3। For example, let us take this question. The question is, if A is equal to I minus 7j plus 7k, B is equal to 3I minus 2j plus 2k, find A cross B, second, mod of A cross B, and number third, a unit vector perpendicular to both A and P. उसका solution, सबसे पहले A cross B किसके बराबर होता है, अभी हमने लिखा डिटरमिनेंट I J K, ये होता है फर्स्ट रो, इसका होता है आई जे की। फिर दूसरा रो क्या होता है, आई के कोफिशिएंट्स 1 माइनस 7 1। तीसरा रो क्या होता है, बी के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 2 2। आप इस डिटरमिनेंट को खोलना है, ये आपने किया है पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, आउट एक्सपैंड एंड डिटरमिनेंट आई इंटू ये कैंसल 7 इंटू माइनस 2 minus 14 minus 2 into minus 1 that is minus 2 minus into minus plus 2, ठीक है। फिर आता है माइनस जे
ये कैंसल, 2 1s are 2, माइनस 3 1s are 3, प्लस k इंटू ये कैंसल, माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2, माइनस 21, माइनस 2 माइनस प्लस 21, ठीक है। तो फिर मैं बताऊंगा i इंटू माइनस 14 प्लस 2, माइनस j इंटू 2 माइनस 3, प्लस k इंटू माइनस 2 प्लस 21, which employs या therefore a क्रॉस b, therefore जो आएगा a क्रॉस b वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा माइनस 12i, ठीक है। फिर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस j और प्लस आएगा 19k, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर, दिस इज द फर्स्ट। ये तब पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा, वो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ये आप निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड दिस योरसेल्फ, ये कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है नंबर थर्ड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। थर्ड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है एन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एंड बी, इसलिए मैंने कहा था इसमें प्लस माइनस आ सकता है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी हमें पता है, सिर्फ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमने नहीं निकाला है। सो लेट अस फाइंड दिस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। So to find this, let us calculate this. This is root of minus 12 का square, that is 144 plus 1 plus 90 square, that is 361, and that is root of, इसको add करो, 1 plus 1 is 2, 2 plus that is 6, and then it is 6 plus 4 that is 10, and this is 3 plus 1 that is 506. So this 1 plus 4 that is 6, 6 plus 4 is 10, 3 plus this is 361 plus 145, that is 6, plus 6 plus 4 is 10, because that is 506. Yes, it is 506. ठीक है, तो ये आएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी आपने ऑलरेडी निकाला है। दिस इज हियर i माइनस 7j प्लस k, 1 माइनस 7 1, यस। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आया है, माइनस 12i plus j plus 19k by root of 506. That is your answer, or you can write n is equal to plus minus 12 by root of 506 I plus 1 by root of 506 k plus 19 by root of 506 k. That is how we find this unit vector which is perpendicular to both A and B. पहले A क्रॉस B, ये डिटरमिनेंट खोलो, जो जब निकालते हैं ये होता है I के कोएफिशिएंट्स 1 minus 7 1, 1 minus 7 1, B के कोएफिशिएंट्स 3 minus 2 2, क्रॉस प्लॉट किया, यू नो दिस, डिटरमिनेंट का कैसे निकालते हैं, ये आ गया। फिर मॉड ऑफ A क्रॉस B हो गया, इसका मॉड, फिर जो यूनिट वेक्टर n होता है परपेंडिकुलर टू A and B, दैट्स प्लस माइनस A क्रॉस B by mod of A क्रॉस B. Substitute the values and this gives you the answer. This is sufficient for today. Thank you.